Today we are going to start comprehension chapter 1 Ada Blackjack. Read this passage about Ada Blackjack, often referred to as the female Robinson Crusoe. Merely 23-year-old Ada Blackjack was barely 5 feet tall, unskilled, timid and completely ignorant of the world outside Nome, Alaska. अलास्का की रहने वाली एडा ब्लैकजैक 23 साल की हैं और इनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है. Nobody likes her and she resides in Alaska. She was mortally afraid of guns and polar bears. She knew nothing about hunting, trapping, living off the land or even building an igloo. इनके पास कोई भी जानकारी नहीं थी कि कैसे हंट करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, इग्लू कैसे बनाते हैं और इसके साथ ही इन्हें गन्स. When she signed on as seamstress with the 1921 Wrangel Island expedition, the men considered her as endurance and a nuisance. They scoffed at her, sure that she would never survive the harsh condition. 1921 में Wrangel Island expedition में उन्होंने एज अ सीमस्ट्रेस साइन किया था और वहाँ पे जो उनके साथ लोग जा रहे थे वो इन्हें एज अ बर्डन फील कर रहे थे बिकॉज शी नो नथिंग अबाउट हंटिंग और मेकिंग इग्लू. देन व्हाट शी विल डू एट द एक्सपीडिशन. काफ़ी हार्श कंडीशन है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगी ये सोच के सब परेशान थे. देयर वर 5 of them, 4 men and a woman. They had volunteered to live on the icy Wrangel Island to the far north of Siberia. इंडिया से नॉर्थ में कुछ दूर पे Wrangel Island है, काफ़ी आइसी ठंडी जगह है, वहाँ पे इन 5 लोगों को जाके रहना था. Their goal was to prove that this inhospitable land was in fact habitable. This was the brainchild of Arctic explorer Vijayamala Stimson, and it was so hopelessly, distressingly wrong. Among the 5 explorers was Ada, whose husband had died, leaving behind a child with chronic tuberculosis. Ada decided to join the expedition at a good salary for just 1 year. She was employed as a team seamstress. अडा ने ये एक्सपीडिशन ज्वाइन किया था क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही थी इस काम के लिए, तो उन्होंने 1 साल के लिए एज अ सीमस्ट्रेस टीम को ज्वाइन किया. अडा के साथ 4 रेस्ट ऑफ द टीम वर हार्डन्ड एडवेंचरर्स, 3 अमेरिकन नेम लॉर्ड नाइट, मिल्टन गेल, फ्रेड मॉरियर एंड अ कैनेडियन कॉल्ड एलान क्रॉफोर्ड. 4 और आदमी थे, अमेरिका के 3 थे, लॉर्ड नाइट, मिल्टन गेल और फ्रेड मॉरियर. इसके साथ ही एक कैनेडियन पर्सन था, एलान क्रॉफोर्ड. इन सभी बहुत ही स्किल्ड एडवेंचरर थे, इनके पास काफ़ी नॉलेज थी. के साथ अडा ने अपना एक्सपीडिशन ज्वाइन किया था एज अ सीमस्ट्रेस. On 16 September 1921, the team was left on the barren Wrangel Island far north of Siberia. 16 September 1921 को वो Wrangel Island पहुँच गए थे. That is north to Siberia. Stephenson was so convinced that the island was teeming with wildlife that he left them with enough food for just 6 months. He promised to send a supply ship for the following summer. स्टीफेंसन जिनके माध्यम से वो जा रहे थे यहाँ पे आइलैंड पे, उसने कन्विंस किया इन सभी को कि वहाँ पे इनफ वाइल्ड लाइफ है जिनको आप हंट करके 6 महीने तक आराम से खाना खा सकते हो. उसके बाद मैं आपके लिए सप्लाई शिप समर तक भेज दूंगा. Mission began well. They built a large snow house and then began to hunt. They managed to kill 10 polar bears, 30 seals and many geese and ducks. They were confident that they could survive until the arrival of the supply ship. But the promised vessel never arrived and the 5 faced a long cold autumn with dwindling supplies. They soon ran short of tea, coffee, flour, beans and sugar. As autumn developed into a furious Arctic winter, the wild game disappeared and the 5 were left extremely Worse still, Lord Knight developed a serious illness. मिशन तो बहुत आसानी से शुरू हो जाता है. वो वहाँ जाते हैं, एक बड़ा सा स्नो हाउस बनाते हैं और हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं. स्टार्टिंग में ही उन्होंने 10 पोलर बियर्स, 30 सील और बहुत ढेर सारे डक्स और गीस का मार के रखा हुआ था. इसके बाद वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि वो जब तक सप्लाई शिप आएगी तब तक उनके पास इनफ फूड स्टोरेज है. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लगती है और वो शिप उनका सामान लेके नहीं आती है. फाइनली उनके पास टी, कॉफ़ी, फ्लोर, बीन्स, शुगर, खाने पीने का सारा सामान धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है. पे ठंड बिल्कुल आर्कटिक विंटर की तरह पड़ रही होती है, तो सारे जो एनिमल्स हैं वो भी छिप जाते हैं. दैट इज़ दे वेंट फॉर हार्बिनेशन और समवेयर. तो इस तरीके से उनके पास हंटिंग के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है और अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है. दे ऑल वेर एक्सट्रीमली हंग्री. इसी बीच लॉर्ड नाइट को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई. On 28 January 1923, Crawford, Gale and Morris decided to traverse the icy Chuchuki Sea to reach the Siberian mainland and seek help. The 3 men were never seen again.
फाइनली क्या होता है कि 28 जनवरी 1923 को दोनों अमेरिकन और कनाडियन ने सोचा कि अब ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, तो हमें जाकर के सी तक जाना है, वहाँ पे हम जाके किसी से मदद लेकर आते हैं। और वो एक बार चले जाते हैं तो बाद वो कभी लौट कर वापस नहीं आए। फ्रोज टू डेथ, हो सकता है कि उनकी ठंड से कहीं रास्ते में ही मौत हो गई है। लॉर्ड नाइट वॉज बाई नाउ सो एफ्लिकेटेड विथ स्कर्वी दैट ही कुड स्कार्सली मूव. ही वॉज नर्स्ड बाई एडा until April, when he also died. Ada was now utterly alone on the ice-bound wilderness. फाइनली क्या होता है, लॉर्ड नाइट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उन्हें स्कर्वी की बीमारी है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। नाउ अडा वॉज कम्प्लीटली अलोन इन दैट आइस बाउंड वाइल्डरनेस, बिल्कुल अकेली हैं। शी सून लर्न टू किल सील्स, फॉक्सेस एंड डक्स. शी देन मेड अ स्ट्यूज आउट ऑफ द मीट. She managed to keep a fire going, but as another summer slipped by, she grew weaker and weaker. She prepared for her own lingering death, but just when she had given up hope for ever being rescued, she sighted a vessel. On 23 August 1923, Donaldson arrived at Wrangel Island. फाइनली क्या होता है, अडा बिल्कुल अकेली हो जाती हैं, खाने पीने सामान नहीं है, तो अब उन्होंने सील, फॉक्स और डक्स को हंट करना सीख लिया है। वहाँ पे वो मीट बनाना और फिर आग को काफ़ी देर तक जलाए रखना उन्होंने सीखा। धीरे धीरे जैसे ही समर बीतता गया, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती गई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती गई, क्योंकि शी वॉज अ किंग एंड मीट के साथ ही उन्हें और भी सारे डाइट की ज़रूरत है जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से सिर्फ मीट के चलते वो क्या हो गई, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई। और फिर उन्होंने सोच लिया कि अब मैं यहाँ से बच के वापस नहीं जाऊँगी, एज नो बडी इज़ कमिंग टू रेस्क्यू मी। तभी 23 अगस्त 1923 को डोनाल्डसन आते हैं रैंगल आइलैंड पे। द क्रू वॉज एक्सपेक्टिंग टू फाइंड गुड हेल्थ, इंस्टेड दे स्टम्बल्ड अपॉन ओनली अ हाफ स्टार्व्ड अडा ब्लैक जैक। क्रू वापस आने पे सोचता है कि हमें पाँचों बहुत ही अच्छी हेल्थ में मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे कौन है, सिर्फ अडा ब्लैक जैक हैं जो कि बिल्कुल मरने की स्थिति में है। When her story reached the outside world, the newspaper labeled her the female Robinson Crusoe. Her survival, they said, was a but she was by now a celebrity, heralded in books and journals. Ada never made it to the North Pole, but she did return to the Arctic and eventually make it her home. Brave, unassuming young woman would say whenever people would praise her courage, I don't know about that, but I would never give up hope while I'm still alive. फाइनली क्या होता है, एडा ब्लैक जैक को वो लेकर के वापस आते हैं, और जब लोगों को उनके बारे में पता चला, देन द न्यूज़पेपर एंड जनरल लेबल्ड हर एज अ फीमेल रॉबिन्सन क्रूज़। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी इन्हें बताया गया। उनके सर्वाइवल को वो मानते थे कि इतनी सारी ऑकवर्ड कंडीशन में भी एडा ब्लैक जैक ने मैनेज किया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है वहाँ पे। जब भी लोग कहते थे कि यू आर अ ब्रेव लेडी, आपके अंदर बहुत सारा करेज है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, देन वो कहती थी कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कुछ किया है, बट मेरे पास एक होप है, एक उम्मीद है, और इसको नहीं छोड़ूंगी। सो ये जो स्टोरी है एडा ब्लैक जैक की, हमें बताती है कि वी शुड नॉट लीव आवर होप एंड शुड गल टू विन एवरी ऑड कंडीशन। गो थ्रू दिस स्टोरी, रीड इट बाय योर सेल्फ। आई होप आपको इसकी समरी समझ में आ गई होगी। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई होप आपने इन्जॉय भी किया होगा। गुड डे।